Yes, Charu Mataji, anything from last week? Yeah, last week it was that what is the purpose of yoga, and the main purpose of yoga is to control body, mind, and activities. And second thing is that we should not sleep more than 6 hours. That person who sleeps more or eats more, he can't be a yogi. Okay. Anything else? Anyone? Any other points? Yes, he described all these things, that the purpose of yoga is to reconnect with God. And he described that what is Vaikuntha. Vaikuntha means jahan par koi kuntha nahi hai, and there is no birth, old age, and death. And people become the purpose of yoga is to become desireless, but because in this material world it is not possible, so we just try our best to be less materialistic as much as we can. Interesting. So we discussed what is Vaikuntha. I think you just touched upon Vigata Kuntha, Vaikuntha, that without anxiety, right? What else do we know? What other information do we have about the spiritual world? Anyone? Like, we are all aspiring to go there. We should know what that place is. The spiritual world is full of light. There is no need of any sun. It is not like Earth, who can't illuminate without sun. Okay. Any other points? What is spiritual world? Any description anyone has heard about the spiritual world? What is that place like? अच्छा, थोड़ा हिंदी मिक्स करके बात करते हैं. ठीक है. तो आध्यात्मिक जगत क्या है? क्या सुना है अपने अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में अब तक? गोलोक धाम में क्या है और हमें क्यों जाना चाहिए वहां पर? सखी है. अच्छा. हाँ हाँ. ओके. Why should we go to Golok? What is there in Golok? नहीं, last class नहीं. In general, this is a general question. Whatever you've heard so far. Like, anyone online? Why should we go to Golok? Yes, because Lord Krishna is there, and by looking at him, we are so satisfied that we don't think of anything else materialistic. Lord Krishna is there, and we are satisfied, and we don't think anything material. Yes. And admiring his opulences. What is that place? Any description of that place that you've heard so far? Shwetadepa. Any description of the spiritual world that you've heard so far? It is 3 times bigger than this materialistic world. 3 times bigger. Okay. Yes. It is a replica of this materialistic world, but it is much, much better than this world. Actually, the material world is replica or the mirror image of the spiritual. Yes, 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 yes. I said the other way around. ये सारे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है जो भगवद गीता में आते हैं, उसके अलावा कुछ सुना है? This bliss transcendental. Completely. What does that mean? Completely transcendental. There is no birth, no death. Okay. We are free from that cycle. We are free from the cycle of birth and death. Okay. Yes. We remain as devotees. Okay. आप क्या बता रहे थे? कुछ पूछ रहे थे?
सवाल क्या है? संसार करके भी धन को लाभ नहीं कर सकते। भगवान संसार करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा? हाँ, मैं बोला संसार में करके भी भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हैं अगर आप जो शास्त्र के नियम है उसके हिसाब से चले. So his question, there's a devotee here is asking that can we be part of the material world and still attain the spiritual world? The other door. Yeah. Hare Krishna. So the question is, can we be part of the material world and live our lives normally, and still can we achieve the spiritual kingdom? Can we attain Krishna? So the answer is, इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं अगर आप शास्त्र के नियमों के हिसाब से अपना जीवन बिताएं. So यहाँ पे we are all looking for happiness. हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं. ऐसा कोई भी नहीं है कि बोलेगा कि मुझे दुख चाहिए, राइट? और फोन को प्लीज साइलेंट पे डाल दीजिए. ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि हमको दुख चाहिए. सो इफ वी लिव आवर लाइफ, तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. 3 गुणों के बारे में बताया गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, राइट? तो आप जो है अपना सुख जो है या अपना योर हैप्पीनेस कैन बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तमोगुण में भी हो सकता है, कैन बी इन मोड ऑफ पैशन. रजोगुण में भी हो सकता है, कैन बी इन मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो. तीनों में काफी अंतर है, राइट? जैसे somebody may enjoy sleeping. That's mode of ignorance, right? Sleeping for 12 hours, 14 hours, regular, like Mataji said, yuktahara viharasya, today's shloka itself, right? One has to have a regulated life. So ये आज का श्लोक जो है, आपका सवाल है पूरा फिट बैठता है इसके ऊपर. तो basically one has to have a regulated life, right? भगवान यहाँ पे बोलते हैं, let's read the shloka actually. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Can you read the translation? He who is regulated in his habits of all material things by practicing the yoga system. Yes. आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. हाँ. अच्छा, बंगाल के. अच्छा, ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़ते, ठीक है. सो समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो अपने आचरण में, जो अपने आदतों में रेगुलेटेड है, जो उसको नियमित तौर से उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि ज्यादा नहीं खाना, एक मात्रा में खाना जो आपके लिए जरूरी है उतना ही, ज्यादा सोना नहीं या कम सोना नहीं, जितना आपको आवश्यकता है उतना सोना, या बहुत ज्यादा काम नहीं करना, मतलब जितना जरूरी है उतना काम करना, गधों की तरह मेहनत नहीं करना, या बिल्कुल काम नहीं करना, वो भी नहीं, राइट? सो बैलेंस, राइट? बैलेंस लाइफ. नहीं, सुनिए. सो बैलेंस लाइफ, ठीक है? तो अगर कोई इस तरह से जिएगा शास्त्रों के नियमों के हिसाब से, राइट, देन कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम. और योग को पालन करेगा, राइट? जो आपके भौतिक कार्य हैं उनको एक बैलेंस में मेंटेन रखना है, ज्यादा नहीं, कम नहीं. और भगवान से जुड़ना है योग के द्वारा. जो इस तरह से अपना कार्य करेगा, ही कैन बी हैप्पी, राइट? Yes, very nice questions. So let's read the purport, and I think from there only we'll have a lot of points. Of course, there are, when your hunger is mitigated, right? So you can eat as much as required for the body, not overeat, right? Nobody has to come and tell you that you're overeating. You already know that you're overeating, right? Or oversleeping, for example. So if the body needs, typically the body needs about 6 hours of sleep. 6 to 8 hours in between that. 6 hours is normally sufficient. But say, for example, if you are,
field worker, like an farmer, you might need more, right? Because your body is genuinely tired, or you've been doing work which is very, very taxing to the body. So some days you may need some more sleep, etc. So and also scriptures indicate a lot of things. Typically, when the rest of the body is completed, that is the time normally when you get dreams, right? So if you're dreaming a lot, you know that it's going a little beyond. And also there is a by nature cycle, जो प्रकृति के साइकिल के हिसाब से जो समय है सोने का. Previously there was no electricity also, right? People used to लोग दिन में काम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो शाम को सो जाते थे जाकर के 8 बजे 9 बजे, right? That's a good time to sleep. In fact, the scriptures describe, जो शास्त्र में बताया गया है कि जो 8 से 9 का नींद है, that is something that will give rest to your mind. Your mind will be relaxed if you sleep from 8 to 9. 9 to 12, 9 से 12 का जो नींद है, those 3 hours is actually equivalent to 6 hours of sleep. Those 3 hours if you sleep, right? That's actually as per nature cycle. प्रकृति के नियम के हिसाब से जब सूर्य ढल गया, उसके बाद हमारे सोने का समय है. That is a body cycle. तो 9 से 12 के बीच में जो सोता है, अगर आप तभी सोए, that is equivalent to 6 hours multiplied by 2, right? 3 into 2, 6 hours, 6 घंटे का नींद के बराबर है. 12 से 3, 12 से 3 सुन लो बराबर, जो 12 से 3 का सोने का है वो 3 घंटा. If you sleep from 3 to 6, that is equivalent to 1.5 hours of sleep half the time, right? So 3 से 6 सुबह सोएंगे तो 1.5 घंटे के बराबर. तो अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप 9 बजे सोने चले जाए और 3 बजे उठे, you will have your entire sleep cycle complete within 6 hours, right? But the rest the body gets is actually 8 hours plus. आप 9 से 12, 9 से 3 सो सकते हैं. Right? That is regulated sleeping as per scriptures. हाँ 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 हाँ, चलेगा, वो भी करिए. अगर आपका स्थिति ऐसा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो 11 से 5 करिए. अगर स्थिति सुधार सकते हैं तो प्रकृति के नियम के हिसाब से बराबर और सुबह उठ जाता था. परफेक्ट, 4 बजे उठ जाता था, काम पे लग जाता था. करेक्ट. कुछ कोई भी एक्सरसाइज करता है, हाँ कोई काम पे भी एक्सरसाइज होता है. हाँ हाँ, exactly. सुस्त रहता है. Okay, let's read the purport. Extravagance in the matter of eating, sleeping, defending, and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Very important point. So how we can regulate eating? अपने आप अपने खाने को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? So यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर if you decide only to take Krishna prasad, right, not eat other things, because आगे चल करके भगवान 9वें चैप्टर में बोलते हैं कि और in fact 7th chapter में भी आता है कि if you are eating food which is not offered to Krishna, if you are eating, कोई भी खाना हम खाते हैं जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, we are verily eating sin, पाप खा रहे हैं. यज्ञ मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्. So because plants are also living entities, जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीव है, तो हम उनको मार के खा रहे हैं. राइट? तो उसमें भी पाप लगता है. लेकिन भगवान बताते हैं भगवद गीता में ही 9वें अध्याय में 26 श्लोक का, क्या उनको अर्पण किया जा सकता है. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति पारतम अश्नामि प्रयतात्मना. जो मुझे एक पत्र ऑफर कर सकते हैं, पुष्प ऑफर कर सकते हैं, फल ऑफर कर सकते हैं, सब्जियां ऑफर कर सकते हैं, जल ऑफर अर्पण कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे अर्पण कर सकते हैं भक्ति के साथ में, तब मैं उसको स्वीकार करता हूँ. भगवान ये नहीं बोल रहे कि मुझे मांस ऑफर करो, अंडा ऑफर करो, मछली ऑफर करो. राइट? भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि उनको क्या
आप भोग लगा सकते हैं। और अगर वो भोग लगा कर खाएंगे तो क्या होगा, जो उसमें जो पाप है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। जो जीवात्मा है who is being offered as a vegetable or a fruit। मांस और सब्जी में क्या अंतर है? हाँ, मांस सब्जी में अंतर क्या है? कुछ वो भी चीज है, ये भी चीज है। वही बता रहा हूं। तो भगवान क्लियरली बता रहे कि उनको क्या अर्पण किया जा सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मछली ऑफर करो। राइट। और ये भी अंतर है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है एनिमल्स का बहुत ही ज्यादा विकसित है, इट्स वेरी एडवांस्ड। सो द सेंसेशन ऑफ पेन इज वेरी हाई विद एनिमल्स, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स, जो सब्जियों या फल फ्रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम वो पूरे पेड़ को उखाड़ नहीं देते हैं। कुछ कुछ केसेस में हम उखाड़ देते हैं। फल तोड़ेंगे तो उसका एक बाई प्रोडक्ट तोड़ रहे हो, वो तो वैसे भी गिरने वाला है, राइट। आप पूरे पेड़ को उखाड़ नहीं रहे हो, तो नॉर्मली आप उसका पूरा जान नहीं ले रहे हो। राइट। उसका एक बाई प्रोडक्ट ले रहे हो और वो भगवान को ऑफर कर रहे हो। और वो भगवान को ऑफर करने से होगा क्या, जो जीव है जिसका जो फल है ऑफर हुआ है, दैट ट्री, दैट जीवात्मा, द सोल which is there as the tree, he will immediately get a chance to come as a human form, right। उसको एक क्या बोलते हैं, मनुष्य का जीवन प्राप्त होने का चांस मिलेगा तुरंत उसको। वो एवोल्यूशनरी साइकिल जो है कि पेड़ से फिर इंसेक्ट्स बने, फिर 4 लेगेड एनिमल, फिर बर्ड बने, फिर 4 लेगेड एनिमल बने, वैसा गुजरना नहीं पड़ेगा उसको। इमीडिएटली ही गेट्स अ चांस टू अपीयर एज अ ह्यूमन एंड गेट्स अ चांस टू सर्व द लॉर्ड एंड गो बैक टू गॉड। भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा मनुष्य शरीर में और वापस जाने का। हाँ, एज एन एनर्जी। I didn't get that. The soul. हाँ हाँ। No, so you are also getting energy to serve the Lord. That's one, right? You offered just by dint of offering, right? Say for example, you just offer it to the Lord. You do not eat, but you distribute, right? So the fact that you've offered this to Krishna, right? Krishna, he glances and eats, right? जब वो अपना दृष्टिपात करके खाते हैं वो प्रसादम को, यहाँ ग्रहण करते हैं, वो आपका भक्ति ग्रहण कर रहे हैं। और जो जिस जीवात्मा का पत्ता या फल लगा है वहां पर, वो जीवात्मा का भी उद्धार होता है। आपका तो उद्धार होता ही है प्रसाद खाने से। You yourself, Krishna says, sorry, in one of the purports, Prabhupada is describing ahar shuddho sattva shuddhi, right? When your food is sanctified, your whole existence is purified. भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारा existence purify हो जाएगा, right? So you also get spiritual benefit, and the जीवात्मा also gets the spiritual benefit जिसका फल लगा है या फूल लगा है या जो भी लगा है, right? That living entity also is elevated to human form. He is also spiritually benefited. You are also benefited, right? समझ में आया कि पूरा? हाँ, प्याज लहसुन। So जैसे मैं बता रहा था कि 3 प्रकार के प्रकृति है, सत्वगुण गुण है, प्रकृति के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो ये सारी जो चीजें हैं जैसे फल फूल, पानी या जो भी है, ये सारा सत्वगुण में आता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है वो तमोगुण में आते हैं। तमोगुण मतलब थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास चीजें वी डोंट ऑफर टू कृष्ण, एंड इफ यू डोंट ऑफर टू कृष्ण व्हिच मींस देयर इज सिन, वहां पे पाप है, तो हम वो नहीं खाते हैं। जैसे प्याज और लहसुन जो है वो तमोगुणी माना जाता है बिकॉज इट स्टिंग्स, स्मेल, गंदा बदबू आता है उससे। तो खराब चीजें हम भगवान को भोगने लगाते हैं। राइट। राजा है, राजा को, अगर कोई राजा है आपके घर में आया है तो आप उसको बेस्ट चीज ऑफर करोगे ना, सबसे अच्छा। तो हम सबसे अच्छी चीजें भगवान को ऑफर करते हैं, और भगवान भी बता रहे हैं कि ऑफर किया जा सकता है। मान लीजिए आप मेरे घर में अतिथि के रूप में आए, अब मुझे पता है कि आपको ऑरेंज जूस बहुत पसंद है, मुझे पता है कि आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, बट मैं क्या करता हूँ, आपको कड़वा करेले का जूस पिलाता हूँ। आप मेरे घर में दोबारा आएंगे, राइट? सो जो आप अनुकूल सेवा करनी चाहिए भगवान की। अनुकूल सेवा मतलब जो आपको पसंद है, मैं आपको अगर वो दूं तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे,
right? You'll be very happy. Similarly, the Lord is saying what to offer to him. भगवान बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आप मुझे अर्पण कर सकते हैं भक्ति के साथ में. ये है भगवान की अनुकूल सेवा. पास में क्या उसमें सकते ना उसके भी कुछ है. और भी बहुत सारे रीजंस हैं शास्त्र में. जैसे अग्नि पुराण में एक रीजन दिया गया है कि जब जो ब्राह्मण लोग थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मंत्रों के साथ में. और वैदिक टाइम पे होता क्या था, जो एनिमल सैक्रिफाइस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स, वो एनिमल सैक्रिफाइस क्या है? अग्नि जल रही है हवन कुंड में, मंत्रोच्चारण हो रहा है, और एक पशु जो कि यहाँ तो घोड़ा होगा या मतलब अश्व होगा या गाय होगी, या वो they would walk into the fire and after the whole process they would walk out as human beings, right? So तुरंत उनको वहीं पर मनुष्य का शरीर मिल जाता था. ऐसा नहीं कि वो अग्नि में प्रवेश करते थे और फिर वो उसका मांस पका करके लोगों को खिलाया जाता था, ऐसा सब नहीं था. वो अग्नि में प्रवेश करते थे, मंत्रोच्चारण द्वारा इतना प्रबल मंत्रोच्चारण होता था कि they would come out as human beings, right? So वो पशु का भी उद्धार होता था, and everyone else would also be benefited like that. So इस तरह के यज्ञ होते थे. तो एक बार क्या हुआ कि जो मंत्रोच्चारण करते करते जो प्रैक्टिस कर रहे थे ब्राह्मण, और उनसे गलती हो गया. So there was a blast, literally. जो पशु अंदर गया वो वापस तो आया नहीं. There was a blast, and जो मांस के टुकड़े गिरे गाय के, वहां पर वो जमीन से प्याज की उत्पत्ति हुई. तो इसलिए उसको तमोगुणी माना जाता है और उसको नहीं खाते. So that's the historic story. अग्नि पुराण में इसका वर्णन है, वहां पर आता है. जनरेशन के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है. क्या है जनरेशन का, किसी रोग नहीं चल सकता. वही बताया ना मैंने आपको. एक तो ये कारण है, दूसरा इसमें से बदबू भी आता है, राइट? तमोगुणी है. लहसुन का भी वही कारण है, राइट? भगवान को इट्स पॉइजन फॉर द बॉडी एंड इट्स पॉइजन फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ. हाँ, आप में तमोगुण और रजोगुण बहुत प्रबल हो जाएगा अगर आप वो खाते रहे. और अगर तमोगुण और रजोगुण प्रबल हो जाएगा तो आप उस तरह के कार्य करेंगे. सो पीपल इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. हाँ हाँ ऐसा. सो अगर आप सो पीपल हु आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन, राइट, दे विल पीपल इन मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण में जो लोग हैं, दे विल वर्क लाइक डोंकी, राइट? फॉर देम वर्क इज वर्शिप. दे विल वर्क सो हार्ड, make plans to collect more and more, right? They will try to eat more and more chatpata, ye wo sab, right? They will sleepless nights spend karke bhi they will try to work, earn as much as possible. They want to enjoy at any cost. That is mode of passion, right? Name, fame, glory, all of that, they want it all. Anything in excess is mode of passion. कुछ भी चीज जो जरूरत से ज्यादा है वो रजोगुण है. And mode of ignorance is ज़्यादा सोना, being dull, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है. Processing power ही खत्म हो चुका है, right? People who are in intoxication, जो नशा करते हैं, वो सारे ऐसे हो जाते हैं ना, उनका processing power ही खत्म हो जाता है. उनको पता भी नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या सही है, क्या गलत है, right? That is people in mode of ignorance. ऐसा नहीं कि खाली जो शराब पीते वही mode of ignorance. We are also in mode of ignorance a lot of times, right? So भगवान बताते हैं कि किस तरह से what was that श्लोका? How lust turns into anger, anger into ध्यायते वो विषयान् पुंस संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, right? So जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस, when you are meditating on the sense objects, right? संगस्तेषु विजायते, we want to associate with the object of senses. We want it, कि हमको ये चाहिए अभी, right? संगात् संजायते कामः, right? And that lust arises कि मेरे को ये चाहिए at any cost, right? And when the lust is unfulfilled, right? Lust means I want this mode of passion. When the passion is unfulfilled,
turns into anger, which is mode of ignorance. वो गुस्से में बदल जाता है, जो कि तमोगुण है. फिर क्रोधात भवति सम्मोह. सम्मोह मीन्स वी आर इल्यूजन. हमको मोह हो जाता है, राइट, पता ही नहीं चलता है. सम्मोह स्मृति विभ्रम, हमारा मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी. स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है. राइट, फिर हम कुछ भी करते हैं. देखा है ना, कोई रास्ते पे खड़े रह करके किसी को मार रहा है, चिल्ला रहा है, राइट, उसका कारण कुछ भी नहीं होएगा. मैं जा रहा था सड़क पे, एक आदमी को देखा. एक फैमिली थी, तो एक औरत थी, वो एक छोटे बच्चे को बहुत पीट रही है. 3 बच्चे थे, उसमें से एक छोटे बच्चे को पीट रही है. तो फिर मैं बोला, क्यों पीट रही है? क्या हो गया? राइट, तो उसका कारण था कि उसको बुलाया, वो आई नहीं, बस उसको इतना पीटा है, मतलब उसको रुला दिया, वो रो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूसली मारे जा रही थी. सो हॉरिबल टू सी. बेगर्स. एंड वो उसको बुलाना था उसको, क्योंकि वो दूसरी जगह भेजना था वहां पे भीख मांगने. सो पीपल डोंट रियलाइज फिर वो क्या कर रहे हैं. सो दैट इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्ट, राइट, क्योंकि हम अपने आप को सत्व गुण में कैसे रख पाए, हाउ वी कैन मेंटेन आवरसेल्व्स इन मोड ऑफ गुडनेस दैट वी एक्ट इन द राइट वे, राइट, कि हम सही ढंग से कार्य कर सके जो हमको करना चाहिए. राइट, वी हैव सो मेनी डिजायर्स, वी वांट टू अचीव सो मेनी थिंग्स. हमको कितनी सारी चीजें प्राप्त करनी है, लेकिन हमको मेहनत नहीं करना है या हमको सही ढंग से काम नहीं करना है, हमको इंस्टेंटली सब चाहिए. दैट इज अगेन फीचर ऑफ मोड ऑफ पैशन. Want everything instantly without doing much effort. Right. So but we know nothing comes, कोई भी चीज ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती. We have to work for it. और सही ढंग से कार्य करना है, रेगुलेटेड होकर के कार्य करना है, रोज प्रॉपर ढंग से लिमिटेड टाइम दे करके अगर हम काम करेंगे तो we'll achieve our goals. So that is in the mode of goodness. वो सत्वगुण में है. हम सत्वगुणी बनेंगे तो हमको जो करना है लाइफ में वो हम कर पाएंगे. इसीलिए युक्ताहार विहार से ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे फैक्टर्स है which keep us in mode of goodness. सबसे बड़े फैक्टर क्या है? आहार, राइट, व्हाट वी ईट. एंड जो हम काम करते हैं, युक्त कर्म से चेष्ट से, राइट, हम कितना सोते हैं, राइट, हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, हम अपने आप रिक्रिएशन कैसे करते हैं, राइट. दीज आर ऑल फैक्टर्स that will decide whether we are in mode of goodness, passion or ignorance. Right? So extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. तो भगवान कृपा करके हमको प्रसाद दे रहे हैं जो कि हमें सिर्फ सत्व गुण नहीं, शुद्ध सत्व में ले जाएगा. It's not just goodness, it's pure goodness. If Krishna has accepted your offering, that prasadam will bring you to pure goodness. Lord Krishna is offered according to Bhagavad Gita vegetables, flowers, fruits, grains, milk, etc. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. इसीलिए भगवद गीता के अनुसार ये जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, अगर वो हम खाना शुरू करें प्रसादम खाली, ये डिसाइड कर ले कि फ्रॉम टुडे आई विल नॉट ईट एनीथिंग एल्स बट प्रसाद, देन वी आर रेगुलेटिंग आवर टंग. हमारा जो जीवा है, हमारा जो जबान है, ये सबसे ज्यादा इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. इट हैज 2 फंक्शंस. सबसे मुश्किल है इसको कंट्रोल करना. 2 चीजें करता है. बाकी सारे जो सेंसेस है, 2 कान है, क्या काम करते हैं? सुनने का. 2 आंखें हैं, क्या काम करते हैं? एक काम देखने का. 2 हाथ है, राइट, जो भी कार्य करना है वो करते हैं. 2 पैर है, राइट. जबान कितना है? नॉस्ट्रिल्स भी 2 है, सूंघने के लिए भी 2 राइट, बट जबान एक है, बट वो कार्य 2 करती है. क्या 2 कार्य? टेस्ट फूड, राइट, खाना का स्वाद और बातें करना.
और ये दो चीजें बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। When we, हमको जब इच्छा होती है अरे आज तो पाव भाजी खाना चाहिए, right? तो कहाँ पे भी बैठे होंगे वहां से आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका फेवरेट पाव भाजी वाला है वहां पर, और आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको पाव भाजी एक जबान के टेस्ट के लिए, 4 इंच का जबान है उसके टेस्ट के लिए, राइट? आपको बहुत कहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, राइट? मुझे पता है कुछ लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं वो लिटरली 30-40 किलोमीटर दूर जाकर के कोई एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे बिकॉज वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो फॉर द टंग वी आर रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, and there is a very famous shloka in Chaitanya Charitamrita, जीवेर लाल से जय इति उति ढाए शिष्णोदर परायण कृष्ण ही पाए. Someone who is running around here and there, जीवेर लाल से इति उति ढाए, right? जो इधर उधर भाग रहा है जीवा की लालसा के लिए, right? शिष्णोदर परायण, after so much effort also कृष्ण नहीं पाए, you won't be able to attain Krishna. So taste and then speaking. खाली अगर हमारा बोलना हम रेगुलेट कर सके, सही ढंग से बोल सके, राइट? तो हम कहां से कहां पहुंच जाए. आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इन योर करियर, आपके जो करियर के एक स्टेज पे आने के बाद स्किल्स डोंट मैटर, राइट? आपका जो कार्य की क्षमता है, जो आपका डोमेन स्किल्स है, डोमेन स्किल मतलब मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो एक स्तर के बाद आप कितना भी अच्छा कर ले, राइट? उसके आगे वो मैटर नहीं करेगा कि हाँ ठीक है आप एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट, ठीक है, वो एक लेवल है. उसके आगे आपका ग्रोथ कैसे होगा? योर सॉफ्ट स्किल्स, आप किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को अपना काम प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ढंग से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, तब जाकर के आपको हायर लेवल का पोजीशंस मिलेगा, राइट? किस ढंग से बात करना, उस हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि आपको एमडी का पोजीशन दिया जाए कि एक आईसी रोल पे, आईसी मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल पे रखा जाए जहां पे आप सिर्फ एक फंक्शन निभा रहे हैं. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द वे यू स्पीक. सो इफ यू सिंपली कंट्रोल द टंग वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम जीवा को कंट्रोल कर ले, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हम किस तरह से भगवान कृपा कर रहे हैं कि हमें वो जबान को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें दी हैं भगवान ने. फर्स्ट इज कृष्ण प्रसाद, राइट? भगवान का प्रसाद खाएं तो हम वी कैन कंट्रोल आवर टंग, राइट? इट्स सैटिस्फाइंग आल्सो नॉट दैट हम आपको बोल रहे कि कुछ नहीं खाओ. आपका जो सवाल था ना कि हम भौतिक जगत में रह करके भी कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान ये नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ दो. क्या बोल रहे हैं? खाओ, सबसे बेस्ट चीज खाओ, प्रसाद, राइट? आपको काजू बादाम खाने से मना नहीं करता, राइट? So you can eat the best food. In fact, devotees they enjoy actually the nicest food, right? Because it's offered to Krishna. The simplest of the food turns in the most tasty food, because Krishna has, tasted that food. His saliva is there. So, Krishna Prasad. और दूसरा है, what is the second thing Krishna has given us? Harinam, right? Chanting the names of God. भगवान का नाम जप अगर हम वो करेंगे तो हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग मंडेन थिंग्स कि अरे आज क्रिकेट में ये हो गया, हरे कृष्ण, आज ये मूवी रिलीज हुई है, तो हम किसी चीज का गुणगान करते रहते हैं या उनके बारे में बोलते रहते हैं. या तो बैक बाइटिंग करेंगे, या तो बुरा बोलेंगे या तो ग्लोरीफाई करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, राइट? तो हमारे जीवा कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इस तरह का चालू ही है. तो उसको उस कार्य में लगाने के बदले अगर सिंपली इफ यू चेंज द टॉपिक, हम अगर वो जो विषय है उसको बदल दे, वी कैन चेंज आवर फॉर्च्यून. हमारा जो भाग्य है बदल जाएगा जस्ट बाय चेंजिंग द टॉपिक. आपको भगवान ने जीवा दिया है, उसका इस्तेमाल करना है, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हम तो
बुरा नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा मौनी बाबा बन जाते हैं हम पर्दा लगा देते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे ही नहीं, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विच मीन्स वो नेगेटिव से -10 पे हम चल रहे हैं, -10 से 0 पे आ गए, कि हम बुरा बोल रहे थे, नॉनसेंस बातें कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है। इट्स कॉल्ड, दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंडेन, इट हैज नो वैल्यू, राइट। इट्स जस्ट ग्राम्य कथा, राइट, इट्स जस्ट रैंडम टॉक, राइट। सो दैट इज लाइक, यू नो, losing our energy, losing our life force just by engaging in some nonsense talk, right? Not utilizing, हम जो फैसिलिटी दी गई है उसको मिस यूज कर रहे हैं, तो -10 पे है, राइट। उससे वो लोग 0 पे आ गए कि भाई हम अभी बोलेंगे ही नहीं, एटलीस्ट यू आर नॉट मिस यूजिंग। बट देन देयर इज पॉजिटिव, राइट, यू कैन गो फ्रॉम 0 to +10 बाय यूजिंग योर टंग। हम जब अपने जीवा का इस्तेमाल करेंगे भगवान के बारे में बात करने के लिए, दैट इज द राइट यूज ऑफ आवर टंग, राइट। उस तरह से हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन वी चैंट हिज नेम, भगवान के नाम जप करना, या भगवान का कथा के बारे में श्रवण, सुनना, बोलना, श्रवण करना, राइट, दैट इज द राइट यूज ऑफ आवर टंग एंड ईयर्स। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपनी जीवा को रेगुलेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अरे मैं काम कैसे करूं, मैं कॉलेज में जाकर के या अपने दफ्तर में जाकर के थोड़ी बातें कर सकता हूँ, सवाल आएगा, राइट। सो हमको जो जरूरी है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जितना वार्तालाप जरूरी है उतना कर सकते हैं। उसके आगे हम वो ग्राम्य कथा में कि अरे आज क्रिकेट में हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं। अभी माता जी के मेरे को साइड में भागवत पढ़ते हैं, उसमें अंतर है, वो बोले मेरे से, मैं उसको सुना, बढ़िया है। और रिक्शा में आ रहे थे, एक माता जी को बोला आप पढ़ते हो क्या? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करेगा, बच्चा है तो ये है, और इसको पढ़ के क्या होगा? तो ये आप मेरे से सवाल पूछ रहे, पढ़ के क्या होगा अभी वही बताया। हाँ, उसको मैं कुछ बोला नहीं, मैं क्या बोलूं उसको? हाँ, तो उसको यही बोलना है कि चेंज द टॉपिक, चेंज योर फॉर्च्यून। अगर आप अपना विषय बदल देंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है, राइट। और आप उनको ये श्लोक के बारे में बता सकते हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कि किस तरह से जब हम जीवा को रेगुलेट करते हैं, राइट, हम बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं। एंड वो आप देख रहे हैं इवन प्रैक्टिकली भौतिक जगत में भी, जो अपनी जीवा पे कंट्रोल कर लिया, जो अच्छे ढंग से बोल पाया, राइट, वो नेता भी बन जाता है राइट। प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, बोलने का ही है, राइट। तो जो अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकता है वो लाइफ में सक्सेसफुल है। और जीवा को कंट्रोल करने के 2 रास्ते आपको बताए मैंने, एक है कृष्ण प्रसाद, दूसरा है भगवान के बारे में चर्चा। आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा, भौतिक जगत में भी आपको सक्सेस मिलेगा, और ये जीवन जब समाप्त हो जाएगा तब आप आध्यात्मिक जगत प्राप्त कर सकते हैं। You can go back to God, right? It's like, you know, you're establishing connection with, say for example, if I tell you, you just यहाँ एक simple story बताता हूँ आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, I think that will clarify everything. तो अकबर जो है उसने भी ये सवाल पूछा था बीरबल से कि भगवान का नाम जप करने से क्या आएगा, तुम क्यों भगवान का नाम जप कर रहे हो, उससे क्या होगा, राइट? तुम्हारे धर्म में इतना नाम जप क्यों है? बीरबल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसका जवाब थोड़े दिनों में दूंगा। बीरबल क्या करता है, एक बूढ़ी औरत है, उसको रिक्रूट करता है उसको, और उसको बोलता है कि ये तुमको पैसे दूंगा, सब दूंगा, तुम क्या करना, बाजार के बीच में जाके बैठ जाओ और अकबर का नाम लेते रहो, और तब तक मत रुकना जब तक मैं खुद नहीं आ जाता तुमको बोलने के लिए। कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, राइट? अकबर का नाम लेते रहो। तो बैठ गए बाजार के बीच में और स्टार्ट हो गए, अकबर 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 अकबर। पहला आधा घंटा किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में कुछ लोग जमा हो गए, बोले अकबर का नाम ले रही है, इतना डेडिकेशन अकबर के लिए राइट? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा भीड़ जमा होने लगा। फिर
वो चालू है अकबर 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 अकबर। लोग जमा क्यों अकबर का नाम ले रहे, क्या क्या चाहिए, क्या इसको, क्या हो गया इसको, अकबर 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 अकबर, वो चालू है। और धीरे धीरे बात पहुंच गई, जो वहां पे मार्केट में जो गार्ड्स थे उनके पास बात पहुंच गया। तो वो आके देखने लगे, अरे क्या हो गया, ये अकबर का नाम, उसको पता चला अकबर का नाम ले रही है। तो भी आके देखे, वो चालू है पर अकबर 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 अकबर। बोला, अरे ये क्या है। तो जाकर के रिपोर्ट किए मंत्रियों को कि अरे एक एक औरत है बाजार में कॉन्स्टेंटली अकबर का नाम ले रही है। तो मंत्री बोले हाँ ठीक है, होएगा कोई, ठीक है, क्या करना है। तो और कुछ घंटे बीत गए और बहुत सारे लोग आकर के यही बात बोलने लगे मंत्रियों को, अरे देखो वो औरत जो है वो कंटिन्यूसली अकबर का नाम ले रही है। तो मंत्री भी जाके देख लेने लगे कि क्या है ये। तो वहां पे वो औरत को देखा, अकबर 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 चालू है। तो मंत्री ने बेचारे, क्या हो गया, क्या चाहिए आपको, अकबर 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 अकबर, अरे बताइए क्या चाहिए आपको, नहीं अकबर 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 चालू है, राइट। तो मंत्री बोले, अरे ये तो मतलब सुन ही नहीं रही है। तो फिर जाकर के उन्होंने राजा को रिपोर्ट किया कि देखिए ऐसा एक औरत है बाजार में, वो आपका नाम कॉन्स्टेंटली ले रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अकबर को लगा कि ठीक है, क्या है ये, मतलब वो भी बोला कि जाने दो। तो उधर वो चालू है कि अकबर 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 चालू है। तो बहुत सारे मंत्री आकर के यही सेम सूचना अकबर को देने लगे कि अरे वो लेडी कॉन्स्टेंटली आपका नाम ले रही है, हम पूछ रहे उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं बता रही है, सिर्फ आपका नाम ले रही है, इतने घंटे हो गए, राइट। तो एक दिन पूरा बीत गया। अगले दिन राजा को फिर ये सारा न्यूज मिलने लगा। तो बोला ठीक है, मैं खुद जाके देखता हूँ अभी क्या है। तो खुद चला गया, वो लेडी के पास पहुंच गया। बोला कि क्या चाहिए आपको, अकबर 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 अकबर, अरे बताइए क्या चाहिए आपको, अकबर अकबर अकबर, अरे बोलिए क्या चाहिए, मैं आपको आपको ये पूरा गांव दे दूंगा, अकबर अकबर अकबर, आपको पूरा राज्य दे दूंगा आधा मेरा। वो फिर भी अकबर 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 चालू है। फिर पीछे से बीरबल आता है, बोलते रुक जाओ। तो रुक गए। फिर बीरबल घूम के बताता है, बोलता है आप तो एक तुच्छ व्यक्ति है पूरे जगत के, राइट, भगवान के सामने तो तुच्छ है, बट फिर भी आप पूरे भारत के राजा हैं। आप अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। ये औरत आपका नाम ले रही थी एक दिन के लिए, आप अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। सोचिए जब भगवान का नाम लेंगे कॉन्स्टेंटली, रोज नियमित रूप से, क्या होगा। तो इफ यू सिंपली चेंज द सब्जेक्ट, राइट, लोग जाते भगवान के पास में मांगने के लिए बहुत सारी चीजें कि मुझे ना घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो। हमको पता नहीं, हम ये बेवकूफ लोग हैं, हमें पता नहीं हम किसके पास जा रहे हैं। और हमें क्या मांगना चाहिए, राइट। जैसे कि पूरे पृथ्वी का राजा है कोई, ठीक है, उससे आप मांगते हो कि अरे मुझे कुछ छोटा सा दे दो। इनफैक्ट एक ऐसा कहानी भी है, एक और, एक बूढ़ी औरत थी, वो जंगल से जा रही थी और बहुत सारा बोझा लेके जा रही थी सर पे, बहुत सारा लकड़ियां लेके जा रही थी, बोझा लेके जा रही थी। तो जाते जाते गिर गया उसके हाथ से, बड़ी मुश्किल से किसी दूसरे ने चढ़ाया था उसके सर पे, सब ये सब गिर गया। बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी कि अरे अब मैं क्या करूंगी, इसको कैसे उठाऊंगी, राइट। और भगवान से बहुत फर्वेंटली प्रार्थना करने लगी, पुकारने लगी कि अरे मेरे को मदद करो, मैं क्या करूं अभी, राइट, ये सब गिर गए, कैसे उठाऊं, राइट। तो उसका प्रार्थना सुन करके बहुत रो रो करके भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने बोला कि क्या चाहिए तुमको, क्या मांगना चाहिए था उसको। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, बोले कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। बोला मैं बोझ उठा के सर पे जी क्या बोला, ये सारी लकड़ी उठा के मेरे सर पर डाल दो। तो हम वही कर रहे हैं, जो भगवान के सामने जाते हैं, जो कि हमको कुछ भी दे सकते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, थोड़ा बोझा उठा के सर पे डाल दो। घर दे दो, गाड़ी दे दो, मोर मोर वेट ऑन द हेड।
right? When you go to God, जब भगवान के पास जाते हैं, हम क्या मांगना चाहिए भगवान से? प्रीति युक्त भक्ति, वेरी नाइस। स्वयं भगवान को मांग लेना चाहिए, राइट? अगर पृथ्वी का कोई राजा है, बोलेगा आपका राज्य दे दो, वो भी हम संभाल नहीं पाएंगे। वो क्या बोलना है कि नाउ आई एम योर अडॉप्टेड सन, मैं आपका अडॉप्टेड सन हूँ। तो बेटे को क्या करना है? सारा राजपाट पिताजी संभालते हैं, राइट? बेटे को क्या करना है? एंजॉय करना है। And he has to simply stay alive to inherit the kingdom. Doesn't have to do much. He simply has to stay alive to inherit the kingdom. तो उसी तरह से अगर हम भगवान को ही मांग ले कि I am yours now, मैं आपका हूँ, then that's the right thing to ask. That's the best thing to ask. Okay, where were we? As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in discharge of his duties in Krishna consciousness, and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. हम जीवन जी रहे हैं, ज्यादा सो करके क्या जी रहे हैं? अगर 12 घंटे सो लिए तो हमने वो 12 घंटे बर्बाद कर दिए, राइट? जितना जरूरी है 6 घंटा अगर उतना ही सोए, we can actually live life more fully, spend the rest of the time in wakefulness, right? वरना हम जीवन जी नहीं रहे, we are just wasting it in sleep. So जो भक्त है, he is very very alert, right? Devotee, he has the attitude of a servant. जो भक्त है उसका जो भाव है वो क्या है? मैं भगवान का सेवक हूँ, right? और सेवक दास हूँ। दास का क्या? He is very alert. जैसे हनुमान जी is a very very good example of a servant, of a दास, right? दास्य भाव। तो हर वक्त तत्पर रहते थे राम जी की सेवा में। राम जी को जो चाहिए था उनके बोलने के पहले वो समझ जाते थे और करके आ जाते थे। लक्ष्मण जी, he is also a very great example, right? जब सीता मैया और राम जी वनवास में गए, लक्ष्मण जी साथ में थे। 14 वर्ष लक्ष्मण जी ने नेत्रा देवी को बोल दिया कि आप जाइए, यहाँ पे मेरे पास मत आइए। 14 वर्ष वो सोए नहीं। He did not sleep because he was constant at night. He used to guard. वो संरक्षण के लिए जगह रहते थे ताकि राम सीता आराम से सोए, वो जागे रहते थे सेवा के लिए। तो जो भक्त है वो दास भाव में बहुत तत्पर रहते हैं, और वो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटी, एक लक्षण है शुद्ध भक्त का, अव्यर्थ कालत्व। वो भी एक क्षण भी गवाते नहीं है। Want to utilize every single moment in service of Krishna. वो हर एक क्षण को भगवान की सेवा में यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए वो सोने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। वो ऑप्टिमाइज करते हैं कि मैं किस समय पे सोऊं कि मेरा रेस्ट पूरा हो जाए, ताकि मैं बाकी समय जितना भी है जाग करके भगवान का सेवा कर सकूं। और क्यों भगवान का सेवा क्या मिलता है? राइट, वी गेट अल्टीमेट हैप्पीनेस। जैसे ये उंगलियां हैं, राइट, शरीर से जुड़ी हुई है। अगर ये उंगलियां बोले कि मुझे अलग से खाना खाना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फूड सेपरेटली, इज इट पॉसिबल? राइट, या हम कुछ इंजेक्शन मार दो उसका अलग से तो उसका फंक्शन करने का एनर्जी आ जाए? नहीं, राइट। द फूड हैज टू सर्व द होल बॉडी। पूरे शरीर की जब सेवा करेगा तब इट विल बी इंटरनली सेटिस्फाइड। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फिंगर्स टू फंक्शन विल बी प्रोवाइडेड। उंगलियों को कार्य करने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत है वो अंदर से ही प्राप्त हो जाएगी जब वो खाना मुंह में डालेगा, पेट पचाएगा और सारे शरीर में शक्ति जाएगी। उसी तरह से वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, राइट? जैसे लाइक दिस फिंगर इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये उंगली हमारे शरीर का हिस्सा है। उसी तरह से हम भी जो है भगवान का अंश है। जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा। जब वो पूर्ण की सेवा करेगा देन विल बी इंटरनली सेटिस्फाइड, will be happy, right? We won't need external things to become happy. हमको बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। We'll be naturally satisfied, right? इसीलिए अगर हम भगवान के बारे में जुड़े जानेंगे, right? भगवान से कैसे जुड़ना है? उसे इस तरह से जुड़ना है कि उनके बारे में सुनना है, उनका नाम जप करना है, उनके बारे में समझना है, तब तो प्रीति युक्त भक्ति होगी, राइट?
किसी को किसी के प्रति प्रीति उत्पन्न करने के लिए, राइट, टू लव समवन वी हैव टू फर्स्ट नो द पर्सन, राइट? सो देयरफॉर वी हैव टू हियर श्रवण। तो आप ये बता सकते हैं कि भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान से प्रेम कर सकेंगे। ओके, सो यस, Avyartha kalatvam. A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in service of the Lord. Therefore, his sleeping is kept to a minimum. His ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in service of Krishna, who could not sleep more than 2 hours a day, and sometimes not even that. So, Rupa Goswami ek hamare acharya hai. Even Haridas Thakur would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. So, दो आचार्यों के बारे में बताया, एक है रूप गोस्वामी, दूसरे हैं हरिदास ठाकुर। सो रूप गोस्वामी जो है केवल 2 घंटा सोते थे, क्योंकि पूरा समय भगवान के नाम जप या भगवान के बारे में शास्त्र लिखने में वो बिताते थे। हरिदास ठाकुर पूरे दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप कोई करने जाए तो प्रैक्टिकली 24 आवर्स फिनिश्ड। तो वो 24 घंटा प्रैक्टिकली भगवान का नाम लेते थे और ना खाते थे जब तक उनका 3 लाख नाम पूरा ना हो। सोते नहीं थे, खाते नहीं थे। As far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not concerned with Krishna's interest, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. जो कार्य भी है जो भक्त करता है वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं माम अनुस्मरण युद्धचार, राइट? अपना मुझे याद करते करते आप युद्ध कीजिए, राइट? सो कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर, राइट? भगवान बोलते हैं कि इफ यू फाइट फॉर माई सेक, राइट? अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे देयर इज नो सिन, कोई पाप नहीं है। जैसे बॉर्डर पे मिलिट्री वाले जाते हैं, 100 लोग को मार के आते हैं, उनको क्या मिलता है? परमवीर चक्र। क्यों? कि on behalf of government of India, they were at the border and they were shooting. अपने गांव में जाकर के एक व्यक्ति को मार दे, वो क्या होगा? जेल में डाल देंगे, राइट? सो भगवान के लिए कार्य किया तो कोई पाप नहीं है, राइट? अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब पे जाते हैं, कुछ करते हैं, वो भी करे, लेकिन भगवान को अर्पण करे उसके रिजल्ट्स, या भगवान ये सोच करके ये तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। When you do it with that mentality, you will do it nicely. You will excel in that whatever you're doing. Okay, so a Krishna conscious person doesn't do anything which is not connected to Krishna, right? Since there is no question of sense gratification, his work is regulated. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. And because he is regulated in all his work, speech, sleep, wakefulness, and all other bodily activities, there is no material miseries for him. तो जो व्यक्ति इस तरह से अपने कार्य को, अपने बोलने को, अपने निद्रा को, राइट, और अपने जगह रहने में जो कार्य करना है उसको, इस तरह से जो अपने सारे कार्यों को नियंत्रित करता है भक्ति द्वारा, भक्ति के कार्य द्वारा, right? Yeah, Krishna consciousness द्वारा, right? He is free from all misery. ऐसा नहीं कि difficult situations नहीं आएंगे। Free from misery मतलब there is pain is even inevitable. Pain तो आएगा. To suffer or not is a choice, right? Which means that I will have the mental wherewithal. मेरे पास वो मानसिक क्षमता रहेगी उससे जूझने की आसानी से। तो जिस तरह से अगर आप माताओं को ये अच्छे से पता होगा, राइट? अगर आपका बहुत कोई प्रियजन आने वाला है, बहुत समय बाद आप उनसे मिलने वाले हो या घर पे आने वाला है, आपको कोई बेटा हो या कोई बहुत टाइम बाद, तो गर्मी के सीजन में भी आप किचन में खड़े रहकर बहुत प्रेम से रसोई बना सकते हैं आग के सामने, कुछ पता नहीं चलेगा। सो हैप्पी एंड इलेटेड, ये ख्याल से कि हाँ अभी वो आएगा, उसके लिए ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी बनाओ, will easily do your work. That pain is there, but you're not suffering.
right? You're happy. उसी तरह से one can remain happy because one is connected to Krishna. भगवान से जुड़े हैं, उनके बारे में सोच करके उनके लिए कार्य करके जो आनंद मिलता है उसमें इतना आनंद है कि हम वो बाकी सारा चीज भूल जाएंगे. That's how we can work and be free from miseries. So we'll stop here. Any questions? कुछ किसी का सवाल है? You mentioned Chaitanya Amrita. You mentioned the words from Chaitanya Amrita. Chaitanya मेरे लाल से इति इति धाय. Charitamrita. Yes, yes. Yeah, there are several volumes of Chaitanya Charitamrita. Can you Yes. please tell me from which volume you took that? I am not able to give you the reference, It's okay. but yeah, I can probably Google it. Just hold on. Okay, that's okay. That's okay. Thank you. Okay, let me see if I can immediately Google it. Otherwise, later on I can share it. Okay, I'll probably share the reference with you sometime. Sure. No problem. Thank you. Antilila 6.27, 227, 6.227. Okay. 6.227. Yes. Antilila. Okay. Thank you. किसी का और कोई सवाल? You're coming here for the first time? To temple first time or to the class first? To the temple itself for the first time. Any doubts? I'm sure this is right in the middle somewhere. So any questions you have? Sure. कोई सवाल आपका? Okay. ठीक है. We'll end with a short kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. So हमारा गोलोक का डिस्कशन रहेगा जो अगली बार करेंगे. Starting the section by asking what is spiritual world, why should we go there? क्या है वहाँ पर ऐसा जो हमें वहाँ पे जाना चाहिए? We'll do that next time. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare We're just arranging what we want for dinner. Do you want to come and look at the Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everyone loudly. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, everyone. Hare Krishna. Stop it.